Morning everyone. Hope you all are fit and fine students. Yes beta, today we will start Unit 1 People at Work from our English reader. Yes students, first of all let's begin with the introduction part. Look at the list of people given below and encircle the ones whose vocation does not affect our lifestyle at all. Here students, some vocations are given like doctor, teacher, singer, florist, okay, domestic help, driver, electrician, shopkeeper, like this beta. Now beta, encircle the ones whose vocation means whose profession does not affect your lifestyle. Okay बेटा, उन प्रोफेशन से बेटा आपको सर्कल करने हैं जिनका वर्क बेटा आपकी लाइफस्टाइल को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करता है. Okay, then beta, the work done by each individual is important and it affects our lives directly or indirectly. Discuss in groups of 4. Yes beta, each individual does his work. हर व्यक्ति बेटा अपना वर्क कर रहा है. Whatever he does is important. बेटा कोई भी पर्सन कोई भी वर्क कर रहा है वो सब इम्पॉर्टेंट होता है बेटा. It affects our life directly or indirectly. Each person affects our lifestyle by his deeds, by his work. We can take an example of a doctor beta. A good doctor examines his patients well. गुड डॉक्टर जो है बेटा अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं, डज इज ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट करते हैं एंड क्योर्स हिम और उसको ठीक कर देते हैं. ओनली ड्यू टू सर्विस ऑफ अ डॉक्टर बेटा, सिर्फ उस डॉक्टर की सर्विस की वजह से ही द सिक मैन गेट्स रिकवरी फ्रॉम इलनेस. जो वो सिक पर्सन है बेटा वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं. सो बेटा इट कैन बी सेड दैट अ डॉक्टर अफेक्ट्स आवर लाइफ डायरेक्टली. Okay, similarly students, we can say a good teacher shows his students the right path. Okay beta, we can take the example of a servant also. Sometimes beta we have seen that a servant becomes like a family member. एक servant जो है बेटा वो हमारे एक family member की तरह बन जाता है हमारे लिए. Okay, so students, we can say that each individual does his work and whatever he does is important and it affects our life directly or indirectly. Now beta, in the word basket drawn below, various professions are mentioned. Each one of them fills in one of the categories mentioned below. Complete the job ladder by writing appropriate profession on each row. Yes students, you can see here in this basket some words are given. Now beta, choose professions from these. Okay, and then write down in the boxes, out in the categories mentioned for these. For example बच्चे एजुकेशन के लिए हम क्या ले सकते हैं बेटा? प्रिंसिपल, लेक्चरर, टीचर. ओके, इनको बेटा हम कहाँ राइट कर सकते हैं? इन द कॉलम ऑफ एजुकेशन. Then students, we can take science. For science students, we can choose the vocation like a doctor, engineer, pathologist. Okay, then beta for media we can take the profession of journalist, editor, news reader, TV anchor. Okay, for entertainment students we can write down singer, magician, dancer. Like these students, try to find out and then beta write down the space provided to you. Now students, let's move on to the next part. How do you feel when you join a new school or a new group of friends? Do you quickly make yourself accustomed to the new surroundings? Or do you take time? Here is a play about a new assistant and his first day at work. Read how confidently he manages everything but means कि हम देखेंगे बेटा क्या हुआ play में. Okay, yes बेटा, when we join a new school or a new group of friends, वी फील अ लिटिल बिट नर्वस. बेटा जब भी हम कोई नया स्कूल ज्वाइन करते हैं या नए फ्रेंड्स बनाते हैं बेटा हम थोड़ा बहुत नर्वस ज़रूर होते हैं. देर इज़ ऑलवेज फियर इन आर माइंड अबाउट न्यू हैपनिंग्स. थोड़ा सा डर हमारे अंदर होता है कि क्या पता हमारी न्यू हैपनिंग्स जो हैं, हमारी न्यू सराउंडिंग्स हैं, उसमें हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बेटा जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा. ओके, इट्स अ ह्यूमन नेचर स्टूडेंट्स. ओके, बट टाइम फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे जैसे बेटा टाइम पास होता है, जैसे भी टाइम जो है बेटा आगे बढ़ता है, एज अ टाइम एडवांसेस वी फील आवर सेल्फ अकस्टम्ड.
हम बेटा उन चीज़ों के आदी हो जाते हैं, हमें हैबिट पड़ जाती है टू द न्यू हैपनिंग्स और वी कैन से सराउंडिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बेटा लेट्स रीड द play The New Assistant. Yes, some main characters of this play beta. Mr. Higgins, owner of the shop. Mr. Higgins कौन से बेटा? Owner shop के. Then first customer, young woman, Tom. Who was Tom? The new assistant. Owner कौन था बेटा? Mr. Higgins and Tom, the new assistants. Then young woman, young man, rich lady. These 6. Okay. Now students, I am giving you the summary of this chapter and beta you have to read it yourself. Okay, you have to read this chapter yourself. I am telling you the summary and after that beta try exercise of this chapter, unit 1. Okay. Mr. Higgins was a shopkeeper. Mr. Higgins जो है बेटा एक दुकानदार थे. He used to sell all things. और बेटा all चीज़ें जो है वो बेचा करते थे. Still he did mistakes at times, but फिर भी बेटा उनसे मिस्टेक हो जाया करती थी. He appointed Tom as a new assistant. He showed Tom the goods sold at his shop and made him understand about the rate of various things. He showed him a silver pot which he had bought for 10 pounds. बेटा मिस्टर हिगिंस ने टॉम को क्या दिखाया? एक सिल्वर पोट जिसे बेटा उन्होंने कितने रुपीज़ में ख़रीदा? 10 पाउंड्स में उन्होंने ख़रीदा था. एंड वुड बी एबल टू सेल इट हार्डली फॉर 8 पाउंड्स. बट बेटा उसको सिर्फ 8 पाउंड्स में ही बेच पाए थे. ही शॉप्ड हिम अ पिक्चर विच ही हैड बोट फॉर 15 पाउंड्स. बाद में बेटा उन्होंने एक पिक्चर दिखाई उसको जो 15 पाउंड्स में उन्होंने ख़रीदी थी. एंड कुड सेल इट फॉर 25 पाउंड्स. लेकिन उसको बेटा 25 पाउंड्स उन्होंने बेच दिया. दस इस तरीके से बेटा देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 10 पाउंड्स. बेटा हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता है कि बेटा कितने रुपीज़ की जो चीज़ आई है उसको हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर लेते हैं. उसके बाद उसको बेटा मार्केट में सेल करते हैं. एंड बेटा ये न्यू असिस्टेंट जो इसमें स्टोरी में बेटा आपको प्ले में क्या बताइए किस तरीके से आपने बिजनेस में प्रॉफिट करना है और ठीक है किस तरीके से आपको लॉस में नहीं जाना है. मेथड. ओके. Now beta thus there will be a profit of 10 pounds. He told him that there were several things in his shop which contained the value of 100 pounds. Mr. Higgins ने टॉम को बताया कि शॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं which contain the value of 100 pounds जिनकी वैल्यू जो है 100 pounds तक भी है. Mr. Higgins explained to Tom that he had marked the price in very small numbers. ओके. मिस्टर हिगिंस ने बताया टॉम को कि उन्होंने जो है इसकी जो प्राइस हैं चीज़ों की जो प्राइस हैं वो बहुत स्मॉल नंबर्स में इन चीज़ों के पीछे या नीचे लिखे हैं. बिहाइंड और अंडर द थिंग्स. ओके. मिस्टर हिगिंस एक्सप्लेन टू टॉम दैट ही हैड मार्क द प्राइस इन वेरी स्मॉल नंबर्स बिहाइंड और अंडर द थिंग्स. ही मेड हिम अंडरस्टैंड. ओके. ही मेड हिम अंडरस्टैंड दैट अ ट्रू बिजनेसमैन शुड sell his things without loss. Profit must be earned. हमें हर हालत में प्रॉफिट कमाना ही कमाना है. After that he told him that he was going away from the shop for about an hour. इसके बाद उन्होंने बोला कि ओके मैं 1 hour के लिए जो है about an hour के लिए जो है बेटा बाहर जा रहा हूँ. He warned him. बट बेटा साथ साथ उन्होंने क्या बोला उसको वार्निंग दी. Mr. Higgins warned him not to sell things if he was not sure of their prices. कि वो किसी भी चीज़ को नहीं बेचे अगर उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, उसको उसके प्राइसेस के बारे में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो किसी भी चीज़ को नहीं बेचे. ओके. बिफोर ही लेफ्ट और जाने से पहले ही सोल्ड अ ग्लास वाज टू द फर्स्ट कस्टमर. फर्स्ट कस्टमर को मिस्टर हिगिंस ने क्या सेल किया बेटा? ही सोल्ड अ ग्लास वाज मीन्स ग्लास पॉट टू द फर्स्ट कस्टमर इन हिज शॉप एंड एक्सप्लेन टू टॉम हाउ टू सेल थिंग्स. और साथ साथ उसको एक्सप्लेन किया टॉम को कि देखो मैं किस तरीके से प्रॉफिट कमाता हूँ, किस तरीके से आपको जो है चीज़ें बेचनी है. ओके. हाउ टू सेल थिंग्स. यस स्टूडेंट्स, व्हेन टॉम वाज अलोन एट शॉप ही चेक्ड द प्राइसेस ऑफ वेरियस थिंग्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक. बेटा जब वो शॉप पर अकेला था टॉम तो उसे सभी चीज़ों के बेटा प्राइसेस को चेक करे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो. ओके. टू अवॉइड एनी मिस्टेक वाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स. जब वो कस्टमर से डील कर रहा हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक ना हो. दैट्स स्टूडेंट्स ही चेक द प्राइसेस ऑफ वेरियस थिंग्स. ओके. देन बेटा अ यंग मैन and young woman
गॉट इनटू द शॉप। जब वो अकेला था बेटा तो कौन आया उसकी शॉप पे? अ यंग मैन एंड यंग वुमेन गॉट इनटू द शॉप। ही सोल्ड देम अ रिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट और लॉस, थिंकिंग दैट ही वुड अर्न अ प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर। और ये सोचा कि ठीक है वो नेक्स्ट टाइम जो है कोई ना कोई प्रॉफिट किसी और जो कस्टमर आएगा उससे वो प्रॉफिट कमा लेगा। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर में बेटा, अ रिच लेडी अपीयर्ड। एक रिच लेडी बेटा उसकी शॉप पर आई। शी बॉट अ पिक्चर, उसने एक पिक्चर खरीद ली बेटा उससे। टॉम शोड हर एन ओल्ड चाइनीज वाज। टॉम ने जो है उसको बहुत पुराना चाइनीज वाज दिखाया, पोट दिखाया, फॉर 105 पाउंड्स। और उसका क्या रेट बताया? 105 पाउंड्स। बट बेटा द रिच लेडी ऑफर टू पे ओनली 100 पाउंड फॉर द वाज। बट रिच लेडी ने क्या बोला कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसके लिए 100 पाउंड दूंगी। उसने कितना मांगा बेटा? 105 पाउंड्स। बट रिच लेडी ने क्या बोला? नो, आई विल पे ओनली 100 पाउंड फॉर दिस पोट, फॉर दिस वाज। व्हेन टॉम रिफ्यूज टू रिड्यूस द प्राइस। और बेटा जब बार बार कहने के बाद भी टॉम ने मना करा कि नहीं मैं प्राइस को कम नहीं करूँगा। ओके, व्हेन टॉम रिफ्यूज टू रिड्यूस द प्राइस द लेडी परचेज्ड ओनली द पेंटिंग। तो लेडी ने सिर्फ परचेज कर ली पेंटिंग एंड वेंट अवे, और वहाँ से चली गई। एंड बेटा इन द इवनिंग मिस्टर हिगिंस रिटर्न टू द शॉप विद एक्साइटमेंट। मिस्टर हिगिंस वापस आए कि ठीक है, टॉम बहुत जो है इंटेलिजेंट लग रहा था, तो उनको लगा कि ठीक है सब कुछ सही होगा पीछे। तो मिस्टर हिगिंस रिटर्न टू द शॉप विद एक्साइटमेंट। टॉम टोल्ड हिम अबाउट द सेल ऑफ द डे। टॉम ने जो है सारी उसको बता दी मैंने आज क्या क्या चीज़ें सेल की, ओके, प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग। ओके, ही ऑल्सो टोल्ड that he did not sell the Chinese vase for 100 pounds। उसने ये भी बताया कि मैंने ये चाइनीज़ वास जो है वो 100 पाउंड्स में कोई मुझसे लेने आया बट मैंने उसको नहीं बेचा। एंड दिस मेड मिस्टर हिगिंस एंग्री। और इससे मिस्टर हिगिंस बहुत एंग्री हो गए। द स्टूडेंट्स सी कि वो इतने एंग्री क्यों हो गए। ये स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्राइस उसका क्या था? 1 पाउंड 10 पेंस। ओके, मिस्टर हिगिंस ने टॉम को क्या बोला? 1 पाउंड 10 पेंस इज़ नॉट मच मनी। ये 1 पाउंड और 10 पेंस कोई ज़्यादा मनी नहीं है। टॉम हैरान हो गया, 1 पाउंड 10 पेंस, आर यू श्योर? ही लुक्स एट द प्राइस ऑन द वाज। येस यू आर क्वाइट राइट। अरे हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देन मिस्टर हिगिंस से बोला, ऑफ कोर्स आई एम राइट। वाई? हाउ मच डिड यू आस्क फॉर इट? कि तुमने इसे कितना मांगा था? टॉम ने उनको बोला, आई आस्क्ड फॉर 110 पाउंड्स। मैंने उनसे जो है 110 पाउंड्स मांगे थे। मिस्टर हिगिंस लाफिंग, 110 पाउंड्स, ओह फॉर दैट अगली ओल्ड वाज। उस बेकार से ओल्ड वाज के लिए आपने 100 पाउंड्स उससे मांगे। वेल ऑफ कोर्स शी डिड नॉट वांट टू पे दैट। तो सही बात है कि वो इतना पे करना ही नहीं चाहती थी। टॉम, नो, बट शी ऑफर्ड मी 100 पाउंड्स। बट उसने जो है मुझे 100 पाउंड्स पे करने के लिए बोला। मिस्टर हिगिंस, इज़ दिस अ जॉक? क्या आप एक जॉक कर रहे हो? नाउ ही इज़ नॉट लाफिंग। नो, इट्स नॉट अ जॉक मिस्टर हिगिंस, शी ऑफर्ड मी 100 पाउंड्स। मुझे उसने सच में 100 पाउंड जो है ऑफर किए थे। एंड यू डिड नॉट टेक इट? मिस्टर हिगिंस ने बोला, और तुमने वो नहीं लिए? टॉम ने बोला, वेल नो सर, यस सर, मैंने नहीं लिए। आई थॉट इट वॉज वर्थ 110 पाउंड्स। मुझे तो लगा कि 100 और 10 पाउंड्स का है, और मैंने उसको बोला कि मैं आपको 105 पाउंड्स में आपको सेल कर दूंगा। बट उसने बोला कि नहीं, मैं तो 100 पाउंड्स दूंगी। दैट्स वे सर, आई हैव नॉट सोल्ड दैट। ओके, वेल नो सर, आई थॉट इट वॉज वर्थ 110 पाउंड्स। आई आस्क्ड फॉर 105। मैंने 105 के बारे में बोला, बट शी डिड नॉट वांट टू पे दैट। आई डिड नॉट वांट टू लूज मनी सर। और सर मैं भी जो है लॉस करना नहीं चाहता था। ओके, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आ गया बेटा मिस्टर हिगिंस को। यू डिड नॉट वांट टू लॉस मनी। तुम ये कह रहे हो कि तुम मनी जो है नहीं लॉस करना चाहते थे। यू हैव लॉस्ट नियरली 100 पाउंड्स। आपने लगभग 100 पाउंड्स के अराउंड जो है लॉस कर लिया। आई हैव सोल्ड ओल्ड थिंग्स फॉर 40 ईयर्स। मैं 40 ईयर्स से बेटा पुरानी चीज़ें बेच रहा हूँ। मिस्टर हिगिंस टॉम को बोल रहे हैं कि आई हैव सोल्ड ओल्ड थिंग्स फॉर 40 ईयर्स एंड नो वन हैज़ ऑफर्ड मी 100 पाउंड्स।
फॉर एन ओल्ड वाज, और मुझे आज तक कभी किसी ने भी जो है इस चाइनीज़ वाज के लिए, जिसको तुम चाइनीज़ वाज बोल रहे हो, उसके लिए किसी ने भी 100 पाउंड्स कभी ऑफ़र नहीं करे, और तुमने क्या किया, एंड यू सेड नो, तुमने नो बोल दिया उसको। देन बेटा टॉम, आई एम सॉरी मिस्टर हिगिंस। मिस्टर हिगिंस को टॉम ने क्या बोला, आई एम सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बेटा यू शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा हम कोई भी वर्क फर्स्ट टाइम करते हैं तो बेटा उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट स्टूडेंट्स वी शुड नॉट अवॉइड देम, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू improve them. Okay students, now beta read this chapter once again and beta try part A in your books. Okay, now students read it once again and try part A. Now beta that's all for today. Thanks and have a nice day. Bye bye beta.